Good morning to all of you. Good After morning, sir. Good morning. Uh, Yogesh, just can you remind me which topic we have discussed in the last session? I was absent in last class. Okay. Like we have discussed group or not? Can anyone tell me the group development process, forming, norming, storming, this type of process we have discussed or not? Astha Gupta, Diksha Sharma, Harshit Chandra, Ashutosh Tripathi, Abhishek Maheshwari. Unmute yourself, please. Astha Gupta, unmute yourself. Astha Gupta. Yes. Which topic we have discussed in the last session? Have we discussed group or not? Speak, please. Growth. Astha, growth. I can't understood this topic. Please tell me what do you mean by growth? No, growth. I don't remember growth. What do you mean by growth? Growth is not a topic in your any subject. Astha, please use mic. Speak over the mic. Parth Sharma, unmute yourself, please. Harshit Chandra, unmute yourself. Both of you, Parth and Harshit. Okay, I'm removing those who are not responding. Abhishek Maheshwari. Abhishek Maheshwari, unmute yourself. Yes, sir.
Yes, Abhishek. Which topic we've discussed in the last session? Tell me that. Have we discussed group? No, sir. No. So we have not discussed the process of group formation, like forming, storming, norming. No, sir. Okay. So today we will start the group development process, and then we'll start leadership. Give me a minute. Okay. See, this is a group. This is the meaning of group, that group is a collection of people who have a common purpose, interact with each other to accomplish the group objectives, and are aware of one another and perceive themselves to be a part of group. That means ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए साथ में आते हैं और उस कॉमन पर्पस को अचीव करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने इंटरमीडिएट में थे तब आप सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे. जब आप बीटेक में आए, जब आपने एक दूसरे को जाना. ठीक है, बीटेक करना आपका कॉमन पर्पस है जिसके लिए आप जेले में आए, आपने यहाँ एडमिशन लिया और आप अपने सेक्शन में हैं. इस समय आप क्लासेस कर रहे हैं. दैट मींस यू आर इन योर सेक्शन, तो योर आइडेंटिटी इज सेक्शन जी. तो आपकी एक कंबाइंड आइडेंटिटी है सेक्शन जी. साथ ही साथ आप एक कॉमन पर्पस के लिए इस कॉलेज में आए हैं जिससे कि आपका बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री आप हासिल कर पाए. ये आपका कॉमन पर्पस है. ठीक है, collection of people means it is a feature of group that we need at least two person. So two or more person can make a group. Single individual cannot form a group, and minimum two persons are needed. Two persons are needed whenever you wanted to make a group. Second one is collective identity. You have a collective identity. One knows another. That means सब एक दूसरे को जानते हैं तो सबके पास सबकी collective identity है और interact एक दूसरे से कर रहे हैं. There is an interaction. So सब लोग एक दूसरे से interact कर रहे हैं and the common purpose is binds them, which increase their cohesion, okay, between them. That means a common purpose which can जिसकी वजह से आप लोग क्लासेस कर रहे हैं उस कॉमन पर्पस की वजह से ही आप लोग एडमिशन लिया है आप लोगों ने. तो आपका वो कॉमन, सबका एक कॉमन पर्पस है कि आप बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री यहां से हासिल कर लें विद इन 4 years. दैट मीन्स लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है ग्रुप ज्वाइन करने की. मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हमारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है. आज 2 टॉपिक में कंप्लीट करूंगा. ओके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम या इश्यू हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और बात कर लीजिएगा. नीड टू ज्वाइन ग्रुप्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के लिए हम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. वी वांट सम प्रोटेक्शन, सो व्हाइल ज्वाइनिंग अ ग्रुप वी गेट द आइडेंटिटी एंड द मेंबर्स, and we can get the protection just because of joining the group. Second one is belongingness need. We wanted to connect us with the society, so be a member of society or being connected with the society. So and being social and our belongingness is important for us. That's why we have joined the groups. So this is also a need to join a group. Esteem needs, when one is member of group and does some piece of work and gets praise. That means whenever you wanted to join a group for a matter of prestige, for example, various people joined various groups, where various clubs. Okay, when you wanted to be a part of club or member of club, so you need some status, some position in the societies. That's why you have joined these clubs. And this can be said that for your esteem needs you have joined the group. Need to join groups. First, second, next is power.
power means whenever you wanted to make some or you wanted to be in contact of some powerful person, or you wanted to have some power, so you can join the group. And for the identity, you can join the group. For example, if a person is joining some committee, if person is joining some political party, if someone is joining some um, like society, that means you are just wanted to have your individual identity. That's why you have joined the group. दिस इज द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. इसको हम टकमैन मॉडल भी बोलते हैं. मैं इधर लिख देता हूं, TU है ये. इसको हम टकमैन मॉडल भी बोलते हैं. ओके, टकमैन मॉडल मतलब you can say it like it can be said as stages of group development. It can be said as like group formation instead of group development. You can say that it is a process of group development or group formation process is this. So there are 5 stages. Number 1 is forming, number 2 is storming, number 3 is norming, fourth is performing, and fifth is adjourning. Okay, so this is your process. You have to learn this process in this order only. First one is forming, then storming, and norming, and then performing and adjourning. Okay, 5 stages are there for making any group. For any form for formation of any group is required. This is the network diagram. Stage 1 is forming, stage 2 is storming, stage 3 is norming, and stage 4 is performing, and stage 5 is adjourning. First stage, forming members get to know each other and make ground rules. Here जब आप यहाँ पे फर्स्ट डे अपना बीटेक में आए थे, फर्स्ट डे जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, उस दिन आप सबको नहीं जानते थे, तो सब एक दूसरे से बहुत कॉशियसली, बहुत केयरफुली बात करना चाह रहे कर रहे होंगे, कहीं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, कहीं किसी को कोई चीज खराब ना लग जाए हमारी कहने में, इसलिए बहुत ज्यादा सोच समझ के बोल रहे होंगे. ये फॉर्मिंग स्टेज है जहां पर हम लोग अलग अलग कोशिश, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बंदे को ढूंढते हैं, अपने कंपेटिबिलिटी सेट करने की कोशिश करते हैं किसी और बंदे के साथ. तो ये होता है फॉर्मिंग स्टेज. सेकंड वन इज स्टॉर्मिंग. मेंबर रजिस्ट कंट्रोल बाय ग्रुप लीड्स. दैट मींस सेकंड स्टेज में थोड़ा सा क्लैशेस आ सकते हैं, क्योंकि सब अपनी पावर डिस्प्ले करना चाहते होंगे ग्रुप्स में, सब अपनी ही बात को मेन रखना चाहते होंगे ग्रुप्स में. दैट्स व्हाई सम struggle for power is seen in this stage. So clashes were there. Now number 3 is norming stage, where close relationship you have built in your group. That means you can decide who is the leader and who are the followers, and who can provide us instructions, and how we can follow his instruction or her instructions. Now next stage is performing, where you can work together and you can perform a task. And adjourning stage may disband. That means if whenever the task is completed, you can say goodbye to your group members and group may be dissolved. But due to some informal kind of relationships with people, you can say that some of the people will connected for a longer period of time after achieving a common purpose. So common purpose is very much necessary. Performing stage, in the performing stage, we are performing, we are putting efforts, combined efforts, collective efforts to complete the task, to complete this process. But at adjourning stage, we have accomplished the task, and we may disband the group, we may dissolve the group, and due to some informal characteristics, due to some informal relationships, some of the people of the group may connected for a longer period of time. Now forming stage, you can say something like it is a great deal of caution, confusion, courtesy, and uncertainty. Formal leaders exert influence in structuring the group and structuring the member expectation. Stage is complete when members of group have begun to think they are part of group. Okay, that means like this. You can take the example of this, like in first stage. Let me
use some. Yes, in your first stage, people are moving in a different direction. See this, people are moving in different direction. That means they are cautious to talk to anyone. They are hesitate to talk to other people, anyone, because they are at their pre-stage. Okay, this is a pre-stage when you have joined the institution and you have come for the first time. One second. What happens in stage 3, close relationship? Ritik Bhushan. I will explain it. First, we can go to the stage 3 by the process as well. Okay, Ritik. Now, second one is forming stage. Forming stage means you are seeking a person who is compatible with your interest. Okay, who is compatible with your interest? You can seek a person, you are trying to seek a person. Okay, then in a storming stage you are connected with someone after exchanging thoughts, beliefs, after exchanging some words, after exchanging your experiences and other things. But here you can see that some people are connected with some people only. Okay, like this man is connected with uh, this man and this. Okay, and this is connected with this only. This, due to his connection with this man, this man can be connect himself with this. Okay, bypassing this man. So in this स्टेज, इस स्टेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लोग क्या करते हैं, अपने पावर पाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने पावर को लेने की कोशिश कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी बात ये सारे लोग माने, बाकी जो चार हैं. ये भी यही चाह रहा है कि मेरी बात को ये सब लोग माने. ये भी यही चाह रहा था. स्ट्रगल ऑफ पावर इधर दिखाई देता है स्टॉर्मिंग स्टेज में. ठीक है, इसीलिए इसको स्टॉर्म कह दिया. स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान. ठीक है, आंधी वगैरह जो चलती है. तो इससे इससे क्या होता है, स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, सब स्ट्रगल करते हैं पावर पाने के लिए, सब स्ट्रगल करते हैं ग्रुप लीडर बनने के लिए. फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब हम एक्सचेंज कर लेते हैं थॉट्स, कोई अपने आप को प्रूव करता है, कोई जब नहीं कोई मानता, कभी कभी देखिए बहुत अलग तरीके से नॉर्मिंग स्टेज तक पहुंचा जाता है. जैसे मानिए ये हमेशा नहीं मानता है ना, इसको हमेशा यही चाहिए, इसको प्रेस चाहिए. तो आप चार लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सर ठीक है, इसको लीड करना तो ठीक है, हम इसकी बात मान लेते हैं, कोई बात नहीं, पर हम बीच में अपने प्रोसेस को मॉडिफाई कर लेंगे. ऐसा भी किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लोग. फिर एक चीज ये लिव फॉर द ग्रुप हार्मनी, ऐसा कर लेते हैं. पर ये भी होता है कि कभी मानिए इसने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव किया है कि मैं ग्रुप के डेवलपमेंट में, ग्रुप के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे इंटेंशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से ग्रुप को आगे ले जा सकता हूँ. तो आप सब लोग ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करने लगोगे, है ना. तो जब जब किसी एक को फॉलो करने लगेंगे तब हम मानेंगे हम नॉर्मिंग स्टेज में आ गए. ठीक है ऋतिक, जब किसी एक को फॉलो करने लगेंगे तब ये मानिए कि हम नॉर्मिंग स्टेज में आ गए. इट इज अ क्लोज रिलेशनशिप, मींस हर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया. और क्लोज रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे ये भी आता है कि आप जब किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिना डाउट, बिना किसी डाउट, बिना किसी ऑब्जेक्शन, किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन विद अ कॉमन पर्पस. Okay, without any clash, without any question, without any objection, the people will follow the rule, and due to that they can easily achieve the performing stage where they can perform better. Okay, where they are connected with each other, they can perform with a collective effort, and they can achieve the target in adjourning stage. At adjourning stage, we have completed our task. मैंने इसको इस तरीके से लीजिए कि अब अगर जब आप अपना बीटेक कंप्लीट कर लेंगे, जिस दिन आपको डिग्री मिल जाएगी, जिस दिन आपके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, उस दिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग अलग अलग प्रोफेशंस में चले जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई, मैं इधर लिख देता हूं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वेट फॉर अ मिनट. यस, कोई फैमिली बिजनेस,
संभालने चला जाएगा, है ना। सॉरी बिजीनेस लिख दिया। सिस्टम हैंग। ओके, कोई फैमिली बिजनेस देखने चला जाएगा, आ गया। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए चला जाएगा, लाइक गेट, उसकी प्रिपरेशन के लिए जाएगा। कोई जॉब करने चला जाएगा, ठीक है। कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर देगा। तो सबके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे एट जॉइनिंग स्टेज में। अब क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आपकी सेक्शन की स्ट्रेंथ 20 या 30 है, ऋतिक आपके सेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल? ऋतिक, सेवेंटी थ्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बीटेक, क्या 73 पीपल जो भी हैं आपकी क्लास में, 73 स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सारे एक साथ कनेक्टेड रह सकते हैं? नो नो सर। सर। नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि उनका कॉमन पर्पस पूरा हो गया, अभी वो कनेक्टेड हैं, वो बीटेक करने आए हैं, अभी वो कनेक्टेड है, फाइनल ईयर तक वो कनेक्टेड रहेंगे, इस सेमेस्टर के बाद ही नहीं रहेंगे। ओके कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे इस पूरे प्रोसेस को ना इस डायग्राम से समझिए। यही डायग्राम आपको बहुत इजी क्लैरिटी दे सकता है कि पहले तो सब एक दूसरे को जानते नहीं है प्री स्टेज में, वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेने के बाद जब वो अपने सेक्शंस में गए तो उन्होंने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की फॉर्मिंग स्टेज में, और बहुत कॉशियसली बात करी कि कौन क्या समझेगा, कोई मेरी बात को अदरवाइज तो नहीं ले लेगा। केयरफुली बात करी, लोगों के एटीट्यूड को समझने की बात करी, कभी कभी कंफ्यूजन ये हुए, नहीं ये तो घमंडी है, बाद में लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो बहुत हेल्पफुल है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपके बहुत सारे परसेप्शंस, बहुत सारे चेंज हुए होंगे। ओके, फिर उसके बाद आप स्टॉर्मिंग स्टेज में जाएंगे, जहां स्ट्रगल फॉर पावर होगा, जहां पर हर बंदा, जैसे 4 या 5 लोग आप कनेक्टेड हो गए अपने ग्रुप में, तो हर बंदा अपनी ही बात को सुपीरियर बनाना चाहता होगा। तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज होगी जहां पे स्ट्रगल फॉर पावर दिखाई देगा। यहाँ पे क्लैशेस ज्यादा होते हैं, ये स्टेज सबसे लंबी हो सकती है, लेकिन जब एक बार क्लैरिटी आ जाती है, हम हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं, कोहेशन बढ़ा लेते हैं। कोहेसिवनेस नॉर्मिंग स्टेज में ही सबसे पहले बढ़ाई जाती है। कोहेसिवनेस मतलब इट इज लाइक ऑफ ग्लू which can increase the attraction and connection between people of a group. So यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ये तय कर लेते हैं ग्रुप लीडर कौन होगा और कौन फॉलोवर्स होंगे, कौन लीड करेगा, कौन इंस्ट्रक्शंस देगा, किसके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे, किसकी बात को ज्यादा सुपीरियरिटी हम देंगे, किससे हमें ज्यादा बात करनी है, किससे हमें डिस्कशन करना जरूरी होता है। इनफॉर्मल रिलेशंस में भी ऐसा ही होता है, और फॉर्मल अथॉरिटी में तो ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग स्टेज, जहां पर हमें एक कॉमन पर्पस सेट कर लिया है हमने, और कॉमन पर्पस के लिए हम कलेक्टिव एफर्ट लगाना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है, आप देखेंगे स्टार बन रहा है बीच में, दैट मीन्स सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है, एंड दैट मीन्स सब कंबाइंड एफर्ट दे रहे हैं। कभी ये नहीं है कि मेरा काम थोड़ी आपका काम है, ऐसा भावना अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज एडजॉर्निंग स्टेज, जहां पर हम अपने कॉमन पर्पस को अचीव कर लेते हैं। जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों में से कुछ लोग अलग अलग हो जाएंगे, जो अपने अपने टारगेट्स में, अपने अपने फ्यूचर प्लान्स की तरफ अपने एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे। यहाँ आपका कॉमन पर्पस चेंज हो जाएगा। कॉमन पर्पस चेंज क्या हो गया, मेरे को फैमिली बिजनेस करना है तो आपका डिफरेंट पर्पस है, मेरे को जॉब करने जाना है आपका डिफरेंट पर्पस है, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है आपका डिफरेंट पर्पस है। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्पस अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप के बीच की बॉन्डिंग खत्म होनी शुरू होगी और कोहेशन खत्म होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप लोग कुछ अलग हो जाओगे। कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स हैं, वो चलेंगी, मे बी लाइफ टाइम तक चले, लेकिन सारे लोग 72-73 पीपल जो आपकी सेक्शन में है, वो सब एक साथ कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट के सारे बच्चों के साथ आप आज कनेक्टेड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आपका कॉमन पर्पस अचीव हो चुका है और आप ग्रुप डिसबैंड कर चुके हो। अब इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर में देखते हैं। मानिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसने हर डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को बुलाया
और सिलेक्ट किया है। जब उन्होंने हर डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, तो जब फर्स्ट फॉर्मिंग स्टेज में वो लोग मिलेंगे तो वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। मानिए एचआर डिपार्टमेंट से कोई और मिला है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई आया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कोई आया है, आर&डी डिपार्टमेंट से कोई आया है, कोई इंजीनियरिंग सेक्शन से आया है। तो इस तरीके से करके जब सब लोग आपस में एक बार बैठेंगे, मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम वो सब लोग कॉशियसली एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, एक दूसरे की क्वालिफिकेशन, उनके वर्किंग एक्सपीरियंस, उनके क्राइटेरिया, उनका फील्ड ऑफ वर्क जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टॉर्मिंग स्टेज आएगी, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन तो खैर इस स्टेज को बहुत जल्दी कवर कर लेती है, नॉर्मिंग स्टेज में चली जाती है। ऑर्गेनाइजेशन पहले से फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू सेट कर देती है कि ये आपके ग्रुप लीडर हैं और इनको आपको फॉलो करना है। लेकिन अगर स्टॉर्मिंग स्टेज देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीडर को लोग नहीं फॉलो करना चाहते, तो वहां पर भी क्लैशेस आते हैं, चाहे फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी से आपको लीडर प्रोवाइड करा दिया जाए, ऐसे में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी लोग उसको अपना लीडर मानने को तैयार नहीं होते, तो स्टॉर्मिंग स्टेज वहां पे दिखाई देने लगती है, स्ट्रगल फॉर पावर दिखाई देने लगता है। फॉर एग्जांपल, मानिए 7 पीपल आपने बुलाए, 7 में से 5 पीपल चाहते हैं कि ये हमारा ग्रुप लीडर हो, लेकिन कंपनी ने किसी और को ग्रुप लीडर बना दिया है, तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस दिखाई देगा, उस चीज के लिए ऑब्जेक्शंस दिखाई देंगे। तो वो अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वो स्टॉर्मिंग स्टेज में चले जाएंगे आप नॉर्मिंग की जगह, और ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप नॉर्मिंग स्टेज में। देन एज पर द group purpose we can perform collectively, and after completion of this task all people will move back to their respective departments and they will work regularly there. अब उसमें किसी के इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स क्रिएट हुए होंगे, किसी के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई होंगी, तो वापस में बात कराएंगे, कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन कॉमन पर्पस उनके अलग हो जाएंगे, कॉमन पर्पस नहीं रहेगा जिसके लिए वो ग्रुप फॉर्म किया गया था। तो एडजॉइनिंग स्टेज कहती है कॉमन पर्पस अचीव हो गया, उसके बाद पर्पस चेंज होने की वजह से लोग डिस्पेंड हो जाते हैं और वो गुड बाय कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम शुभांशी? so that I can move ahead for next topic. Yes, sir. Is there any problem? No. देखिए, ये टकमेंट मॉडल के नाम से आ सकता है, ये ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस के नाम से आ सकता है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन आ सकता है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट के नाम से आ सकता है, और ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन किसी भी नाम से आ सकता है, आपको यही पढ़ना है। स्टेज किस का ऑर्डर एक ही है, उसी ऑर्डर में आपको इसे पढ़ना है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ओके, एफएसएन, Yes, sir. पीए, ऐसे याद कर लीजिएगा, एफएसएन, पीए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या होता है? चेंज क्या है पहले तो ये बताइए। सर बदलाव। Change. नहीं, बदलाव ये तो हिंदी में आपने बता दिया। चेंज से आप समझ क्या रहे हैं? चेंज ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इफेक्ट डाल सकता है, मैं वो जानना चाहता हूं। देखिए, जैसे आपके टीचर बीच में चेंज हो गए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी जब आपने मेरे साथ लेक्चरशिप, लीडरशिप के लेक्चर्स को एडजस्ट करना शुरू किया होगा, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा शुरू के 2-3 लेक्चर्स में, क्योंकि आप पहले टीचर के साथ एडजस्ट कर गए थे, है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। आ, अब क्या होगा, अब ये है कि आगे आने वाले समय में आपको मानिए मैं फिर से चेंज हो जाता, फिर एक और टीचर चेंज हो जाता, 4-5 टीचर चेंज होते, तो आपके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आने लगता है, आप रजिस्ट करते हो उस चेंज, क्योंकि अभी एक के साथ कंफर्टेबल हुए, फिर दूसरे के साथ कंफर्टेबल हुए, इस तरीके से करते करते ये चीज एक डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे जैसे चेंजेस होते हैं वैसे वैसे लोग रजिस्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता चेंज करना। मैं अगर कहीं एडजस्ट कर गया हूं, मैं कंफर्ट में हूं, तो मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता। इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, पहले वो देखते हैं, फिर इसमें डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है? Okay, sir. अच्छा टॉपिक है, तो हम पहले वीडियोस देखते हैं, मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। वेयर इज दैट वीडियो? ये रहा। सर लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके, पहले ये देखिए आप, इज इट विजिबल? एंड मुझे एक बात बताओ, आपको
साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? Yes, sir. Sound आ रहा है। ओके। Why is change in life so difficult? When I was younger, I was excited by change. I looked forward to it, I was happy when it happened. As I'm growing older, I try to avoid it as much as possible. I'm not able to cope when it happens. It all depends who is initiating the change. Maybe, but is there something like an appropriate response to change? One reason why change is becoming difficult as you get older is you have found cocoons of comfort. There are many comfort zones you created. Any disturbance of that, you're disturbed now. When you were young, you were not looking for comfort, you were looking for life. Now you're not looking for life, you're looking for comfort, safety. See, when you were 16, 18, you had wild dreams as to what you want to do with your life. By the time you became 25, you cut down all the frills and thought, this is all not practical, I am becoming practical now. All that happened is you were becoming a coward, but you said, I am becoming practical, and cut down many things and said, if I get a job, if I earn my living, this is okay. By the time you're 35, you're thinking, if I don't get into any trouble, that's enough. You're not looking forward into anything great happening. If I don't get into trouble, that's enough. But that's when you start getting into trouble. So, you're not looking at life with zest, you're looking at life as safety. The more security-oriented you are, the more disturbed you will be with every change that happens in your life. The essence of physical existence is change, isn't it? Isn't it so? Everything is changing. Is there anything that's not changing? Everything in the existence is changing, isn't it? The physical existence is constantly changing. The very essence of physical reality is change. Nothing is constant. Even the so-called static states are dynamic in nature, everything is changing. So if you resist change, you're resisting life. If you want an unchanging life, there's one beautiful place where nothing changes, that's your grave. Either you must go to your grave or you must get enlightened if you don't want change. Then somewhere inside everything is same. But otherwise, as long as you're a part of the physical process of the existence, everything is changed, there is nothing that is not changing. See, this moment you're inhaling, next moment you're exhaling, it's change, isn't it? If you don't want change, you stop it. So when you resist change, you must understand you're resisting the very process of life, not just your life, you're resisting the very fundamental process of life. Invariably, you will invite all kinds of suffering. If you're living and you want to be dead, you will ask for trouble, isn't it? You must be living. When you're living, you must live totally. If you want to die, you must do that efficiently. These are inefficient ways of killing yourself, really. Unhappiness and depression are inefficient ways of killing yourself, isn't it so? At least be efficient. I can give you 10 different ways to die. Anyway, Hussain Sagar is there. Is it still water in it? Okay. So, you need to understand this. Once you resist change, you're resisting the whole process of life and you will create unnecessary suffering. So once you resist change, depression is a natural process. Frustration, when change happens, frustration, depression. Frustration and depression are… on a certain day, the devil decided to retire. Because he is retiring, he decided to put all the tools of his trade for a garage sale. So he opened up discount sale, all the devil's tools. There's a huge rush. There are all kinds of things, anger, hatred, jealousy, this one, that one, everything on the table.
All of you people went and bought it up in no time. Everything was sold out in the first hour, all his tools. The whole humanity has bought it, isn't it? But he had still one more bag and what's your name? Lena? Lena went and asked the devil, "What's in that bag? Isn't that for sale?" He said, "No, no, these are the prize tools. Just as souvenirs, I want to keep them because they have worked best to do my job." Lena said, "No, I want it, please. Won't you sell that?" Devil said, "No, no, no, these two tools that I have in this bag, they have worked so wonderfully well in my whole career that I would like to keep them as my souvenirs." Once Lena said, many other people joined behind her and, "Please, put it on sale, put it on sale, put it on sale." Then the devil pulled out and said, "Okay, if you're giving a good price, let me put it on sale." Then it pulled out frustration and depression and put it on table. These two are the best of the devil's tools. If you want to destroy your life, frustration, you start with frustration, develop into depression. You're there. There's nothing worse than that. You'll work against yourself. And the moment you resist change, frustration is natural. Once frustration comes, it'll naturally evolve into depression. So, you put it on sale. यस देखिए मैंने इधर चैट में बहुत कुछ लिख दिया है जो उन्होंने बोला कंफर्ट प्रैक्टिकल लाइफ डोंट गेटिंग इनटू ट्रबल सेफ्टी सिक्योरिटी डोंट वांटेड टू बी डिस्टर्ब नथिंग इज कांस्टेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स अ मैटर ऑफ लिव और डाई resistance can increase frustration depression and you are trying to create unnecessary hurdles in the way of your life if you are resisting the change and all these are the best tools for devil. Okay, that means we do not require to resist a change as it is a nature's call. Everything is changing in our life. We are changing in our life. Okay, so organization is also required to be changed after a longer period of time of its survival. If you're seeking the advertisements of the brands which are using in 1980s when and then 1990s and then 2000 and now in 2020 the level of advertisement have changed. They have changed their utilities as well. They have increased their utilities, they have increased their packaging, they have increased everything, their attitude as well while offering their products to the customers. But whenever we are asking about the organizational leadership, it is very important as we need to initiate a change in our organization as we know that as a part of management we have the information from our R&D department that if we do not initiate change right now then the matter of survival comes in front of us and our organization may be closed in near future. Example is Bajaj Scooters. They are the leaders of this market, Indian market. But they do not want it to change and they left their 100% market share, or we can say that 80% of market share, 20% is for LML at that time. They have decided to close the manufacturing of scooter sections in India. They are the leaders who provide best scooters for Indian market, for Indian consumers. But they do not have scooters now and the scooter market exists in present scenario as well and the Honda Activa is the main leader of that segment. इस एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि बजाज स्कूटर ने ये समझ लिया कि आगे स्कूटर का कोई भविष्य नहीं है और उन्होंने अपने सेक्शन को बंद कर दिया जहां वो 80% तक मार्केट शेयर कवर करते थे। एलएमएल की एंट्री के बाद भी एलएमएल जब तक नहीं था तो 100% मार्केट शेयर रखते थे
4 months 8 months लोग वेट करते थे, वेटिंग में रहता था स्कूटर डिलीवरी के लिए। वो कंपनी अपने स्कूटर सेगमेंट में एक स्कूटर आज नहीं रखती। अब उनका स्कूटर बजाज चेतक उन्होंने रीलॉन्च किया है इलेक्ट्रिक वर्जन में, लेकिन अपने स्कूटर नहीं रखती। और स्कूटर मार्केट आज भी एग्जिस्ट करता है। होंडा ने उसे समझा ठीक से, उन्होंने चेंज किया, माइंड चेंज किया, यूटिलिटी बदली, और उन्होंने उसको एक नए फॉर्म में गेयरलेस स्कूटर में आपको प्रोवाइड कराया, और लोग उस पर भरोसा करते हैं और आज उसको लेते हैं। उसका अपना एक मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। ये शुभांशी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, सो इधर देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जो हमें दिखाई देंगी। हम रेजिस्ट क्यों करते हैं चेंज को? क्योंकि हम अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते। हम कंफर्टेबल हो गए हैं अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, हम अपना काम सीख चुके हैं। 5 साल से एक तरह का काम करते आ रहे हैं, हम सीख चुके हैं, हम उसमें कंफर्टेबल है, हम किसी भी तरह से उसे मैनेज कर लेते हैं। इट इज ईजी टू मैनेज फॉर अस। हम उस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम रेजिस्ट करते हैं चेंज को। चेंज क्या है? ऐसा चेंज जो कभी ना कभी करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपको आगे सरवाइव करना है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बही खाते बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं अकाउंट्स में बहुत एक्सपर्ट हूं, मेरे अकाउंट्स में कभी कोई एरर नहीं आता, मैं सारा काम मैनुअल करता हूं। आगे टैली आ गया, टैली के बाद अब ईआरपीज आ गई जहां पर मुझे काम करना पड़ेगा। आई एम नॉट अ टेक सेवी पर्सन। अगर इस तरह का चेंज मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेके आने वाली है तो मेरे अंदर एक फियर आएगा, दैट फियर ऑफ लूजिंग जॉब। माय बॉस इज नॉट wanted me, as I am not a tech savvy person, I am not comfortable to work on computers or the softwares, but I know accounts very well. So it is a responsibility of my leader, it is a responsibility of my management that they can provide me training first, then initiate the change. रेजिस्टेंस नहीं आएगा। मुझे 3-4 महीने पहले अगर मुझे उसकी ट्रेनिंग दिलवा दी जाए सॉफ्टवेयर की, तो मैं उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो काम करना आएगा। तो दैट इज द पॉइंट व्हेन लीडर सेड यू हैव टू चेंज, बट फर्स्ट आई विल गिव यू द ट्रेनिंग। अब मैं ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद हमें बताया कि अब आपका ये चेंज इनिशिएट किया जाएगा, अब आप कंफर्टेबल हैं, आप इस पोजीशन में काम कर सकते हैं। मुझे फियर ऑफ लूजिंग जॉब कभी मेरे अंदर क्रिएट नहीं होगा, मेरे अंदर कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, मैं उसको रेजिस्ट नहीं करूंगा। रेजिस्ट नहीं करूंगा तो अननेसेसरी हर्डल क्रिएट नहीं होगा इन द वे ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में ये चीज मदद करेगी। तो लीडर को समझना चाहिए कि जब भी वो कोई चेंज इनिशिएट करेगा, उस समय पर ऑर्गेनाइजेशन में क्लैशेस आने की पोजीशन आ जाएगी, लोग रेजिस्ट करेंगे उस चेंज को, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू compromise with their comfort, they do not want them getting into trouble, they do not want to lose their safety, security, and they do not want it to be disturbed. But it is a nature, it is a rule of nature that nothing is constant, everything is changing. There is a resistance to change which can affect the organization's effectiveness, organization's productivity. But it is a matter that it is a belief of a leader that when they prepare their staff members for the to accept some changes which are going to be held in future, they timely prepare the policies, they timely provide some training sessions to their employees, then it can be possible to allow the change in a very comfortable environment in the organization, right? Sir, Yes. I want to say something related to change. Yes. I have seen something in my environment that a person when he's young tends toward changes related to job and the change becoming in the generation, like the trend of clothes or and many other things are Yes. changing with the time. So in young age, a person is, and when he becomes builder, he Yes. is at the trend which was on his parents' time was good, and I mean I couldn't understand this technique.
has accepted the change at his young time, then why he is resisting? I mean, The situations about the situations provide my father was very the situations are the reasons for this change. For example, we all try to give some good learning to our younger ones. Like if you are having somebody in your some children in your house, in your home, uh, whose age is like 4 years, 5 years, 6 years, or 10 years, you are trying to give some principles, you are trying to deliver some principles to them. You always wanted to make them learn that you should work with honesty, you आपको सच बोलना चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना? आप ये सब दिखाते हैं, so वो sometimes I think समझाते these हैं। things are wrong. आप ये सब समझाते हैं, सुन तो लो, Just आप ये सब समझाते हैं उन्हें, आप ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक आदर्श इंसान की तरह काम करे, उसको सारी अच्छी बातें हम सिखाते हैं, लेकिन जब बात आती है उन्हें अप्लाई करने की, तो हमारे सामने कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकलिटी सीख जाते हैं, है ना? हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम ये कहते हैं यार इससे नुकसान होगा, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और कर लेना चाहिए, इस जगह पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कई जगह ऐसी आ जाती है इंसान की लाइफ में जहां उन्हें लगता है कि इस जगह पर मुझे बोलना चाहिए, एज पर माई प्रिंसिपल मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, ये चीज गलत हो रही है, मेरे सामने गलत हो रहा है, लेकिन उस चीज को वो अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि वो सीख गया है, वो जान गया है कि अगर मैं इसमें पड़ा तो इससे नुकसान मेरा ही होगा, है ना? सेल्फिशनेस क्रिएट हो जाती है। हम वो सब चीजें प्रैक्टिकली अपनी सिचुएशंस के आधार पर सीखते हैं। फर्स्ट टाइम यू हैव ट्राइड इन योर यंगर एज कि मैं ट्राई करता हूं, मैं बदलूंगा इस चीज को, कोशिश करते हैं लोग बदलने की, लेकिन जब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी में वो चेंज अलाउड नहीं है, मेजॉरिटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, है ना? जब उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है तब जाकर के वो सीख जाता है प्रैक्टिकल सिचुएशन को कि नहीं, इससे नुकसान मेरा ही होना है, मैं इसमें क्यों पढ़ूं, why should I will be in this situation, or why should I handle this situation, मेरा क्या बेनिफिट है। जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तो आप उस चीज को भूल जाओगे। अब आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आ गई, पहले आपके अंदर इंस्पिरेशन है। बात समझ रहे हो शुभांशी? yes sir. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चे को समझाने के दो मेथड होते हैं, फीडबैक सॉलिसिटेशन मेथड होता है, सॉलिसिटेशन मेथड, और एक होता है हार्ड मेथड। हार्ड मेथड मतलब बच्चे ने कोई गलती करी, कोई भी गलती कर दी, इंटेंशनली करी, अनइंटेंशनली करी। आपने देखा होगा बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं जो सीधा गाल पर देते हैं और बोल देते हैं कि भाई ठीक कर दो। बहुत फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत रूडली बिहेव करते हैं, और एट द एज ऑफ 5, 6 और 10 बच्चे को इस तरीके से समझा दिया जाता है कि ये गलती नहीं करनी है आगे। यस और नो? Yes sir. उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट ये आता है बच्चा अपना डिसीजन मेकिंग पावर खो देता है। अगर आप So उसे sometimes लंबे he समय तक becomes करते habitual रहेंगे ऐसा उसके साथ बिहेव, तो अपना डिसीजन मेकिंग पावर खो देगा। वो हमेशा डिपेंडेंट हो जाएगा कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए, छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, अगर मैंने ये किया तो पापा नाराज हो जाएंगे, फिर डांट पड़ेगी। समझ रहे हो? फ्रीडम ऑफ टेकिंग बैलेंस डिसीजन उसके अंदर कभी नहीं आ पाएगा। एक होता है फीडबैक सॉलिसिटेशन मेथड, बेटा ये आपने गलती करी है, देखो इसका इम्पैक्ट ये आ गया, आपको ऐसा आगे नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं जो इस तरीके से भी समझाते हैं। बहुत फैमिलीज हैं जो बहुत सारा लॉस बियर करते हैं, लेकिन कभी भी आइडियोलॉजी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते। और जब आइडियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, उस समय पर बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है, सेल्फ डिपेंडेंट जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी आइडियोलॉजी को बैलेंस करने की कोशिश की, ना कि उसके एटीट्यूड को बदलने की कोशिश की। आइडियोलॉजी अगर सही है तो एटीट्यूड ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? yes sir. ठीक है। एंड जैसे जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, वैसे वैसे हमें लर्निंग मिलती है। हम कहते हैं कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब चेंज हो रहा है। तो जब आप सोसाइटी में रहते हैं, अभी आप मथुरा की सोसाइटी में हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा
कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएंगे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तब आपको और ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन दिखाई देगा। समझ रहे हो? उस समय आप भी बदलोगे। अगर आप नहीं बदलोगे तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। That is a requirement for your survival. As it is written in chat box, it is a matter of live or die. जब live or die का मैटर आ गया तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो 3 चीजें आएंगी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तीनों चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। राइट? Yes, sir. जैसे उन्होंने बेस्ट टूल ऑफ डेविल्स बताया ना, कि डेविल से पूछा भाई तुम्हारा जॉब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। क्यों चल रहा है बढ़िया? क्योंकि मैं लोगों को टेंशन दे रहा हूं। ठीक है, अब वो कौन से टूल्स हैं? वो टूल्स बता दिए उन्होंने, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इससे टेंशन जाती है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जैसे जैसे हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे और बहुत सारे चेंजेस हम देखेंगे। ठीक है? डिप्लोमेसी आपके अंदर आ जाएगी। आप चीजों को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, आज भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद आप आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको ये लर्निंग दे दें कि नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से नुकसान मेरा होता है, लोगों के साथ मेरे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो मैं डिप्लोमेटिकली किसी और रास्ते से अपनी बात को बोलूंगी जरूर, लेकिन मैं डिफरेंटली दूसरे रास्ते से अपनी बात को बोलूंगी, डिफरेंट टोन में बोलूंगी, डिफरेंट स्टाइल में समझाऊंगी, कोई एग्जाम्पल साइड में क्रिएट करके उससे समझा दूंगी, जिससे कि मेरी बात भी हो जाएगी और सामने वाला समझ भी जाएगा और मेरे रिलेशंस भी सेव हो जाएंगे। है ना? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप चेंज को मैनेज कर सकते हैं। देखिए इम्पैक्ट क्या आता है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंटेंशन चेंज करने की ठीक है तो आप बिल्कुल परफेक्ट चेंज करेंगे। मेरे पास इसके लिए भी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटेंशन अगर आपकी सही है तो आप सही चेंज करेंगे। हमारे पास अभी और भी लेक्चर्स होंगे तो मैं इसको और अच्छे से कवर कर लूंगा आगे। पहले ये वीडियो देख लीजिए, इससे आप समझेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आइडियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आइडियोलॉजी चेंज करनी है, इंटेंशन आपका सही है, तो आप बहुत अच्छे से चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। मत कीजिए, देखिए इस घर में हमारे साथ क्या हुआ। मम्मी जी, Yes. अब वैदेही कैसा रहेगा? थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है। Are you able to listen the sound? Yes, sir. Yes, sir. But this- सर से कुछ यस काम सर, सोचा है? क्लियर है। डायरी पढ़ी है, देख ले। I think we can't complete this today. I mean, time is not left. विदित व्योम मिनट की तो है खाली। वर्तमान I mean, रुक बहू, मैं देखती हूँ। पता नहीं कहाँ से खबर मिल जाती। क्या है? हाय हाय, तेरे घर में राजा बेटा आएगा, राजा बेटा। शाहरुख चाहिए कि सचिन चाहिए? मैं दुआ दूंगी। अरे नोटो वाला बंडल निकाल की जुगी जुगी जी ये तेरा अबे लाल। बस 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 करो, लाती हूँ। और मैं ही बधाइयां मांगने आऊंगी। अम्मा, लड़का होगा लड़का। क्यों? लड़की होगी तो दुआ नहीं दोगी? अगर दुआ देनी ही है तो ये दुआ दो, लड़का या लड़की जो भी हो सब ठीक ठाक हो जाए और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। समझी? पकड़ो, बढ़िया दुआ दे। राजा बेटा नहीं, रानी बेटी हुई है। किस्मत अच्छी है हमारी, इसलिए ज्यादा दूंगी। किस्मत आपकी इस बेटी की अच्छी है जो आपके जैसे घर में पैदा हो। और आज मैं शगुन लेने नहीं, शगुन देने आई हूँ। इस पैसे से इसे कुछ अच्छा खरीद कर देना और कहना कि मौसी ने दिया है।
खुद ही दे दो। हेलो, Yes, sir. हाँ, अब देखिए इससे क्या दिख रहा है आपको, इसमें एक आइडियोलॉजी दिखाई देगी जिससे एक कॉमन परसेप्शन जो सोसाइटी का है, जो बहुत ज्यादा घातक है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है ना। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लीडर का इंटेंशन ये है कि आप वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी विद द एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज बढ़ाना चाहता है, तो पहले वो अपने एम्प्लॉइज को उसके लिए रेडी करेगा, तब चेंज को इनिशिएट करेगा। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है। पीपल विल रेजिस्ट चेंज। मैं कभी भी कोई चेंज लाने की कोशिश करूंगा, उस समय पर पीपल, उसको, लोग जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको रेजिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के बारे में सोच लिया, मैं कल से नई टेक्नोलॉजी यूज करूंगा या 1 महीने में नई टेक्नोलॉजी यूज करने वाला हूँ, नई मशीनरीज लाऊंगा, तो मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर फियर ऑफ लूजिंग जॉब आ जाएगा। वो इस चीज को रेजिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, नई मशीनरी मतलब कम लोगों की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को। समझ रहे हो? तो मुझे पहले अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनके अंदर से फियर निकालना होगा, उनको उस एनवायरनमेंट के लिए कंफर्टेबल करना होगा, तब जाकर के मुझे वो चेंज इनिशिएट करना होगा। ये लीडर का जॉब है। यही हमें सीखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या क्या चीजें कैसे किया जा सकता है। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। अकदार मॉडल है, उसे देख लीजिएगा, AKDAR, पहले पढ़ के देखिएगा। इंटेंशन अगर सही है तो आप इस मॉडल के हिसाब से चेंज बहुत अच्छे से इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। No, sir, no doubts. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। सेम टू Same to सर। you. थैंक यू।